Okay. In the last lecture, we discussed the what are the mobile database issue. What are the database management issue? How the mobile databases are differ from previous simple database management (DBMS) system, and various issues are uh, clear in the previous video lecture. So, as mobile management issues discussed earlier, these are the major mobile management issues. As far as mobile management issues concerned, that if you manage the database in the mobile devices, then we should consider some constraint which directly belong to the mobile devices. The constraint are limited memory size, dependency on the power backup or battery, a small size visual screen, and versatility in mobile devices. These are several issues which are explained earlier lectures. If we list out all the data management issues, and these slides show the what are the data management issues. The first issue consider the data dissemination using broadcasting or data management. How the data disseminated over the network for the mobile devices, cache consistency and data replication, how the data stored. Today's topic is directly related to this issue. How the cache consistency maintain and data replication is a uh, copy of the data for the several time of use. Location data management, again, the location is the most important information for mobile devices, and this location information shared to the uh, service station and base station. Various sensors data processing. Sensors are used for data processing. Again, this is a major issue. Location and context. Location information, particular location information, and relevant information like mobile device, mobile number, and location details, IP address, uh, and name, subscriber detail. These details are context aware or relevant detail for the that mobile devices. Also, mobile devices are work as a disconnected nature. This also explained in the very detail in previous lectures. But how the mobile devices work in the disconnected nature. Then mobile devices totally work in the wireless medium. We should manage our database for wireless medium feature. Speed and limitations of the wireless links. Scalability, when the traffic increases, number of mobile nodes are increases, then how to maintain the scalability, how to maintain the speed and efficiency for the databases. And again, major issues of wireless security issues. Your data is secure for send, receiver and destination, and security issues are also major concern for the database management. And transaction management includes the if any updation occur in the server end, then it directly reflects for the client end. Transaction management is a major concern over the uh, mobile database management. Then portability, interdependency, yeah, uh, in eliminate the dependency of the various platform hardware software, because various mobile devices use several types of hardware and software which are versatile in the nature, and if we consider the database for that devices, then we must implement the portability feature. Then handoff feature for storing the essential information. Limited by battery power, again this is a major limitation for the mobile devices. Every mobile device is dependent on the battery power, and limited battery consumption.
for uh, mobile devices. We should always recharge for the battery for certain hours. Mobility is again if user are move from one location to another location, the work and efficiency is not affected by that, the mobility or movement of the user as well as devices. Query processing, request processing, how the client request fulfill in the efficient manner. These are the various points which are concise for discussing the issues of data management. In today's topic, we discuss the how the data is stored in the device, why the data storage is required for the mobile devices. Cache consistency, cache consistency, and the data hoarding. Uh, the major topic for today. Cache consistency, as the topic as discuss before discussing the topic, we explain the cache consistency. Cache meaning simple. We know that the memory constant. Cache is the simple short memory which is stored the frequently asked data. We know this type of definition earlier. Cache memory is stored the frequent data. Consistency. Consistency word meaning. If we declare the consistency, then consistency meaning that if any data updation in the server end, suppose any data updation in the server end, it directly reflect on the client end. Any data updation in the server end, it directly reflect in the client end as the time of moment updation. It if this possibility govern, then it known as consistency. Updation reflect over the client and server both sides. The cache consistency meaning the data updated time to time and synchronized with the server side data. Server side and client side data are synchronized and consistent in the manner. If the any data updation is occur over the server side, then it directly reflect to the client side. This feature known as cache consistency. Caching is useful during the frequent relocation and connection different area. Here we know that our mobile device is mobility in nature, change their location time to time, reallocate the devices, mobility nature by the mobile devices, and connected area, different area connected to the that particular information for that particular information. The caching required for these reallocated and connection, reallocation and connection establishment for the different area. The performance and availability limitation during the weak connection disconnection. Again, caching required for the performance availability. Suppose any mobile device having the uh, very weak internet connection, and this internet connection is very weak, and it is not properly take data from the server time to time. Then how we manage the this type of client for that fast server? If the internet connectivity or a weak connection between the server and that particular mobile device, in this scenario the server is not faulty, the client service or subscriber not providing the proper interconnected connectivity for that server, weak connection for or the disconnection for the that particular mobile device. For these devices, caching is again very beneficial. Cache in the cache, the data which is frequently asked for that mobile device is stored at the local end. So this is the major issue for the data weak connection are managed by the caching feature. It also reduce contention small bandwidth wireless network. If in the wireless network, the subscriber
or the mobile user uses very uh, cheap sensor devices like 2G, 3G, or 4G, again 5G, then as you know that these type of technologies uses different bandwidth and different technologies for data sharing and connectivity. For a small bandwidth, for a cheap subscriber facility for the user, then the contention, reduce the contention, reduce the traffic, reduce the data availability feature, we require caching. It also improve the query response time. Query response time, the time which is incurred in completing the any request. If suppose the client request for any particular task, then how much time contain total processing for response time, responding that particular request. This is known as response query response time, and our system designed such a way that the total time is reduced, and this obviously maintained by the caching feature. It also work as a disconnected nature, support disconnected or a weakly connected operations. Then may request different, it may request different levels of cache consistency hampered by the disconnected and mobility network. Cache consistency are different levels. uh, it will totally depend on the how you want your data from server. If your updated data not required for you, then it may be lower level of consistency. And if you require updated data, suppose if you want the example, uh, for a mobile device you access the train schedule. Train schedule so train schedule is not frequently changed for a server, then their consistency level is low. And if you want weather condition today, if you want to access the weather condition for the after 2 hour, then you want updated database from the weather server. So is these two examples shows that the how level of consistency you want for the server. So this depend on the various type of usability of the database for your requirement for the application. Then solution is here, these scenarios we provide the solution for the periodically broadcasting for actual data. uh, this is again solution. It reflect that we are replicating the data for a periodic time, a certain time element. If certain time passes, then server disseminate or broadcast the actual data. It is again a solution. Control information such as the log table and logs. Log table and logs are also maintained in the particular server. For that, how much time taken by the certain of client, and who is the login for particular request. These session management, as you know, as a programmer, these features also include for the solution for this consistency. In today's topic, we maintain the consistency, and our main topic for today is, as you know, that the hoarding techniques. What are the various database hoarding techniques? What are the various ways for hoarding the mobile database for for solving दिस प्रॉब्लम वो डिस्कस अर्लियर. जो प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस की उन सारी प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं होर्डिंग टेक्निक क्या होती है, होर्डिंग टेक्निक्स के बारे में. तो डेटाबेस जो मोबाइल डेटाबेसेस हैं वो एज यू नो दैट इट इज़ मोबाइलिटी इन नेचर, एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम, any user anywhere anytime data access by the mobile computing, or all the data is stored is very systematic way on the server. If the data are stored in the certain types of rows and column, and or the major uh, lightweight structure, as I saw in earlier lectures,
how the mobile database are stored in the mobile devices. As we know that the nature of mobile device, a mobile device is not always connected to the server. Mobile device is not always connected to the server or a network. Or in other words, we know that the mobile devices are working as the disconnected network method. Or mobile devices retrieve the data from server whenever they required, and the various applications, as we know that how the mobile database are processed, then certain application are APIs, application programming interface. APIs are used for these purposes, for establishing the connection between the server and API and fulfill the request of the mobile devices. तो API का यूज करते हैं मोबाइल डिवाइसेस में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए. एक मिनट, कोई तो API का यूज किया जाता है. और API का यूज का मेन वर्क यही है कि ये डिस्कनेक्टेड नेचर में आपको फीचर देता है. इसके बाद अब इसमें एक ऐसे वर्क कैसे होता है, अभी मैं इसका वर्किंग पर बता दे रहा हूँ. होल्डिंग टेक्निक्स में कैसे होता है. डिवाइस जो होती हैं डिवाइसेस अपने सर्टेन डिवाइस दीज मोबाइल डिवाइस कंटेन द कैश इन देयर लोकेशन मेमोरी, certain memory for storing the data, specific data, which are required for the future computation. The devices are managed in such a way that they store the data which are required for the future use, and this storage is known as caching, or the hoarding of the database, or the caching of the data in the mobile devices. And this information is used by that mobile for the period when the server is connected to the certain API. Hoarding of the cache data in the database ensure that even when the device is not connected to the network, the data required from the database is available for computing. Here we describe the definition of the hoarding. Hoarding describes the hoarding of cache data in the database ensure that even when the device is not connected to the network, the data required from the database is available for computing. This is the simple example, simple definition. What is the hoarding? Hoarding shows that the procedure, it is the method by which the cache data, the stored data in the mobile device used for that particular mobile device while it is disconnected by the internet server. Like simple example, if you use the mobile devices, in mobile device, ringtone, music, video clips, which we download and we use in the offline manner. सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल समझिए, मोबाइल डिवाइस आप लोग यूज करते हैं, आपने नेटफ्लिक्स यूज किया, तो नेटफ्लिक्स में मोबाइल ऑनलाइन से कनेक्टेड करके, अगर आपके पास सपोज करिए उस समय टाइम नहीं है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में ऑफलाइन पे मोबाइल मूवी देखते हैं. तो ये क्या है, एक होर्डिंग का प्रोसीजर है. इसी तरह से कोई इन्फॉर्म, जैसे आप रिंगटोन है, तो रिंगटोन को आपने स्टोर कर लिया और वो रिंगटोन आपके कैश में रहेगी, और जैसे ही आप किसी को कॉल करते हैं तो वो रिंगटोन उस पर अप्लाई हो जाती है. तो एक तरह से ये स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपके उसमें कैश में होल्ड है. बार बार सर्वर से वो आपकी रिंगटोन कॉपी नहीं होती है, उसकी एक कॉपी आपके मोबाइल पे स्टोर हो जाती है. कोई म्यूजिक है, कोई वीडियो क्लिप है, कोई भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, या इससे भी सिंपल एग्जांपल कि आप कोई ब्राउजर यूज करते हैं, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीज डालते हैं, अगर आपने पासवर्ड सेव किया हुआ है तो वो अगेन आपको सीधे मिल जाता है तुरंत. ये कैश की वजह से, ब्राउजर हिस्ट्री की वजह से, सेशन मैनेजमेंट की वजह से. तो ये सारी कुछ भी कोई इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको आगे फर्दर यूज कर होनी है, तो मोबाइल क्या करता है, वो सर्टन इन्फॉर्मेशन को कैश में स्टोर करता है, और इस चीज को होर्डिंग कहते हैं.
और मोबाइल डिवाइसेस जब डिस्कनेक्टेड वे में वर्क करती हैं तो वहाँ पे यही डेटा आपका यूज़ हो जाता है, जो कि मोबाइल होर्डिंग कहलाता है। डेटाबेस होर्डिंग में बी डन एट द एप्लीकेशन इटसेल्फ, और डेटाबेस होर्डिंग में भी यही चीज़ होती है। इसमें हम लोग इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। बेसिकली क्या होता क्या है इसमें। दिस shows that the what are the database hoarding। डेटाबेस होर्डिंग जो मैंने अभी बताया आपको, एग्जांपल डेफिनेशन बताई वो यहीं लिखी हुई है। डेटाबेस होर्डिंग में बी डन एट द एप्लीकेशन टायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल पे आ रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने बताया था कि मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, बीच में सेकंड फर्स्ट टायर मोबाइल डिवाइस का है, दूसरा है आपका जो है आपका एपीआई का है, देन डेटाबेस का है, सर्वर का है। इस तरह से मोबाइल डिवाइसेस वर्क करती हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर। टू टायर में भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपकी मोबाइल डिवाइस में ही एपीआई पड़ी हुई है और डायरेक्टली डेटाबेस से अटैच कर रही है। तो डेटाबेस होर्डिंग में बी डन एट द एप्लीकेशन टायर इटसेल्फ। डेटाबेस होर्डिंग जो है वो आपके एप्लीकेशन टायर में, एप्लीकेशन टायर टायर 2 है, एपीआई है, जो कि आपके अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर मोबाइल में अवेलेबल है तो मोबाइल में भी हो सकती है। तो एप्लीकेशन टायर में ये होती है। आपका एग्जांपल यहाँ शो हो रहा है कि ये मोबाइल डिवाइस का आर्किटेक्चर है, दो तरीके से यूज होता है, जिसमें कि आपका मोबाइल डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस से रिक्वेस्ट करने के फुलफिल करने के लिए। फर्स्ट ये वाला देखिएगा, पहला जो है ए ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा है कि आपकी मोबाइल डिवाइस कंटेनिंग द एपीआई, मोबाइल डिवाइस आपकी है वो एपीआई को कंटेन किए हुए हैं। एपीआई क्या होती है, मोबाइल डिवाइसेस डेटाबेस एपीआई, जैसे J2ME, BREW, XML डेटाबेसेस और अदर डेटाबेस एंड कैश डेटाबेस फ्रॉम रिमोट सर्वर। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सी एंड पाम ओएस या सिम्बाइन बेसिक्स, इस तरह से ओएस जो होते हैं वो मोबाइल एपीआई को स्टोर करते हैं आपकी मोबाइल डिवाइसेस में। बिल्ट इन एपीआई रखते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती हैं आपके डेटाबेस से। तो अगर टू टायर आर्किटेक्चर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपका जो एपीआई होगा या फर्स्ट जो दो टायर हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, मोबाइल डिवाइस में रहते हैं। मोबाइल डिवाइस कंटेनिंग द एपीआई एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डेटाबेस। एपीआई क्या है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि सर्टेन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये आपके सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं डिस्कनेक्टेड वे में रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद फिर आपका डेटाबेस से कनेक्ट होता है। डेटाबेस आपका एप्लीकेशन डेटाबेस और मोबाइल डिवाइसेस या के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस मैनेज करके देता है। तो पहला जो आपका है ये है, इस केस में आपको दिखाया गया कि एपीआई एट द मोबाइल डिवाइस सेंडिंग क्वेरीज एंड रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द लोकल डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस से वो क्वेरीज को सेंड कर रहा है, आपकी मोबाइल डिवाइस ही आपका डेटा सेंड कर रही है और वही उसको मैनेज कर रही है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज किया जाता है। जैसे कि ये बी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि आपके मोबाइल में जो एपीआई है उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा हम लोग का यूज होता है DB2। DB2 है आपका, जिसको DB2 डेटाबेस टू, आईबीएम का डेटाबेस है, आईबीएम का DB2 एवरी प्लेस कहते हैं, DB2E। तो DB2E जो है आपका वो अगेन एक मिडिल टेयर की तरह वर्क करता है और आपकी मोबाइल डिवाइस की एपीआई को डायरेक्टली अपने आप में कनेक्ट करता है और उसके बाद डेटाबेस डिवाइस से डेटाबेस करता है, जैसे मिडिलवेयर की तरह वर्क कर रहा है। और ये एक ऐसी एपीआई, मोबाइल एपीआई होती हैं जो कि इस DB2E से कनेक्टेड होती हैं। DB2E आईबीएम का एक डेटाबेस है जिसका नाम IBM DB2E एवरी प्लेस है, ई फॉर एवरी प्लेस, और ये कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वे में वर्क करता है सिंपली। और जैसे ही आपका ये वर्क करेगा, इसमें होता क्या है कि दोनों ही आर्किटेक्चर जो हैं, दोनों ही डेटाबेस आर्किटेक्चर, वन चाहे आपका वन टायर डेटाबेस आर्किटेक्चर हो या आपका वो DB2E वाला हो, दोनों तरह के आर्किटेक्चर में इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल की जाती है। Both the two architecture belong to the class of a one tier database architecture because the database are specific to a mobile devices। किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिक डेटा दिया जाता है। स्पेसिफिक डेटा क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो भी रिक्वेस्टेड मोबाइल डिवाइस है उसको अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, उसके स्क्रीन के अकॉर्डिंग, उसके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए। तो इसलिए मोबाइल डिवाइस स्पेसिफिक डेटा सेंड देना है, इसीलिए आपका एक ये आर्किटेक्चर आपका यूज़ किया जाता है। It not be distributed to the multiple devices, not synchronized with the new updates or stored at the device itself।
इसका मीनिंग ये है कि आपका जो अपडेट्स हैं स्टोर्ड डिवाइसेस में हैं, ये सब अपडेट्स जो हैं वो सिंक्रोनाइजेशन वेल मैनर में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता इसमें। जैसे कि सम एग्जांपल डाउनलोडेड रिंगटोन है, म्यूजिक है, ये सब आपके डिस्कनेक्टेड वे में आपको अवेलेबल रहती हैं, कैश में अवेलेबल रहती हैं। IBM DB2 एवरी प्लेस, IBM DB2 एवरी प्लेस जो है DB2E, इट इज ए रिलेशनल डेटाबेस इंजन। IBM DB2E का जो आर्किटेक्चर यूज किया जाता है वर्क करने के लिए, मोबाइल डेटाबेस होल्डिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका DB2E एक रिलेशनल डेटाबेस इंजन है which has been designed to reside at the device. It supports the J2ME, Java to Mobile Enterprise Edition, J2ME and most mobile devices operating system, कई सारे operating system को support करता है, J2ME को support करता है। J2ME एक special language है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। जैसे जावा के कई सारे वर्जन पढ़े हैं आपने, J2E, J2SE, J2ME। तो J2ME क्या है, स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो J2ME है वो मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम से के को सपोर्ट करता है। तो DB2E क्या करता है कि जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था API में, जो मोबाइल API के थ्रू फर्स्ट आर्किटेक्चर के, उस API के थ्रू वो अवेलेबल कराता है। और DB2E प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेस विद द DB2 डेटाबेस, और ये डेटाबेस DB2 का यूज करता है। जैसे कि हम लोग ओरेकल और एसक्यूएल यूज करते हैं, माइस्क्यूएल यूज करते हैं, लेकिन DB2 डेटाबेस को ये यूज करेगा क्योंकि IBM का डेटाबेस है, उसी से कंप्लीमेंट्री इसकी। तो IBM का DB2 डेटाबेस जो है वो DB2E आपका यूज कर, DB2E क्या है, DB2 एवरी प्लेस इंजन है, रिलेशनल डेटाबेस इंजन है, जो कि DB2 डेटाबेस को यूज करके सिंक्रोनाइजेशन फीचर देता है। सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है अपडेशन रिफ्लेक्ट ओवर द क्लाइंट, एप्लीकेशन एंड इंटरप्राइज सर्वर, तीनों जगह पे सिंक्रोनाइजेशन दे रहा है। आपके मोबाइल डिवाइस पे भी डेटाबेस अपडेट शो करेगा, एप्लीकेशन एंड पे भी, और इंटरप्राइज सर्वर पे भी। अगर आपने कुछ चेंज किया तो वहाँ पे भी शो करेगा। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर, अब यहाँ पे आपका 2 टायर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर को दिखाया जा रहा है। अभी आपका 1 टायर आर्किटेक्चर था। 1 टायर में 2 चीज़ें थी, पहला सिंपल मोबाइल डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पे आपका DB2E लगा दिया गया, DB2 इंजन लगा दिया गया, जो कि रिलेशनल डेटाबेस DB2 को में कनेक्ट में डेटाबेस को कनेक्ट करता है और आपको आपके API को, मोबाइल डिवाइस को स्पेसिफिक डेटा देता है। तो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए ये 1 टायर आर्किटेक्चर इनहेंस किया गया। अब टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर, 2 टायर मल्टी टायर डेटाबेस में क्या होता है कि द डेटाबेस रिसाइड एट द रिमोट सर्वर एंड द कॉपीज ऑफ दीज डेटाबेसेस आर कैश्ड एट द क्लाइंट टायर्स। यहाँ पे एक वर्सटाइल फीचर दिया गया कि एक्चुअल डेटाबेस आपका सर्वर पे रहेगा, योर डेटाबेस रिसाइड एट द रिमोट सर्वर एंड द कॉपीज ऑफ दीज डेटाबेस आर कैश्ड एट द क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट एंड पे ये सब चीजें कॉपीज रहेंगी, और इस तरह से ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में सपोर्ट करता है। मोबाइल डिवाइसेस लगी हुई हैं टायर 1 पे, और मोबाइल डिवाइसेस पर्टिकुलर वन है एंड सो ऑन एन नंबर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस विद देयर appropriate cache data in their mobile device, cache data in from server database। और यहाँ पे एक बीच में आपका मिडिल टायर लगा हुआ है, 2-3 टायर जितना भी हो सकता है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन सर्वर लगा हुआ है बीच में, एप्लीकेशन सर्वर टायर 2 है, इंटरप्राइज सर्वर डेटाबेस टायर 2-3 हो सकता है। तो ये पहला आपका क्या है, कैश डेटा रीड फ्रॉम द डेटा सर्वर। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कैश आर्किटेक्चर यूज हो रहा है बीच में, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन सर्वर है जो कि इस सारे मोबाइल्स के डेटा को और रिक्वेस्ट को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और फुलफिल कर रहे हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट दूसरा तरीका है, पहले तो आपकी ये लगा दिया, एप्लीकेशन सर्वर को ऐड कर दिया, एंटरप्राइज सर्वर को डायरेक्टली इंटरेक्ट किया। दूसरे में क्या है, प्रोसेसर लगे हुए हैं, कई सारे प्रोसेसर, कैश डेटा रीड द रीडेबल, यहाँ केवल रीडेबल डेटा है, यहाँ पे राइटेबल भी है, चेंजेबल भी डेटा है। और इसको हम क्या कर रहे हैं कि शेयर्ड मेमोरी बस से एक कॉमन बस लगा दिया ट्रांसफर करने के लिए, और ये शेयर्ड मेमोरी मेन मेमोरी से कनेक्टेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कैश इन द मोबाइल डिवाइसेस में और हो रहा है पहला आपका, और सिमिलर आर्किटेक्चर फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मेमोरी इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। यहाँ आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम लगा हुआ है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और यहाँ पे आपका मोबाइल डेटाबेस में लगा हुआ है। तो दोनों में आपको कंपैरिजन दिखाया कैसे वो आपका वर्क कर रहा है मल्टी टायर के अंदर। अब इसमें क्या है कि जो कैशिंग होती है, लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स रिकॉर्ड stored at the devices, databases are hoarded at the application और enterprise tier, वहाँ पे होल्ड रहते हैं, स्टोर रहते हैं। databases server uses a business logic connectivity for retrieving the data,
देन ट्रांसमिटिंग द, ये सब वर्क लिखा हुआ है कि कैश में होता क्या है कि इस प्रोसीजर के अंदर कि कैश मेंटेन द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस और डेटाबेस ऑफ आइटम्स और रिकॉर्ड स्टोर एट द डिवाइस। डिवाइस में कौन कौन सा डेटाबेस आपने स्टोर किया है मोबाइल डिवाइस के अंदर, वो उसकी इन्फॉर्मेशन ये रखता है। डेटाबेसेस आर होल्डेड एट एप्लीकेशन और एंटरप्राइज टायर। डेटाबेस जो होगा आपका एक्चुअल वो एप्लीकेशन और एंटरप्राइज टीयर पे होगा, सेकेंड लेवल पे होगा यहाँ पे, और एंटरप्राइज टीयर पे आएगा। in that location where the database server uses business logic and connectivity for retrieving data and transmitting devices। मीनिंग यह है कि आपकी डिवाइस पे केवल आपका रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन वो रहेगी, सारा का सारा डेटाबेस एप्लीकेशन सर्वर पे रहेगा, एंटरप्राइज सर्वर पे रहेगा, और यहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक भी रहेगा और कनेक्टिविटी फॉर द रिट्रीविंग डेटा एंड देन ट्रांसफरिंग डिवाइस। यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड वे में वर्क कर रहा है कि आपकी जो जब भी रिक्वेस्ट कोई आपकी आएगी तो वो आपकी वहाँ पे फुलफिल की जाएगी। तो कनेक्टिविटी फॉर द रिट्रीविंग द डेटा देन ट्रांसमिटिंग इट टू डिवाइसेस, इसका ट्रांसमिट कनेक्टिविटी देने के बाद ये ट्रांसमिट कर देता है। सर्वर प्रोवाइड्स एन अपडेट लोकल कॉपीज ऑफ द डेटाबेस एंड ईच मोबाइल डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। सर्वर कोई भी अपडेशन करने के बाद हर लोकल सर्वर को रेप्लिका भेजता है, रेप्लिकेशन हम लोग आगे देखेंगे कि जो उसकी कॉपी है वो वहाँ पे भेजता है, जिससे कि आपका डेटा कंसिस्टेंस रहे और मोबाइल यूजर को अपडेटेड डेटाबेस मिल सके। The computing of API at the mobile devices फर्स्ट टायर यूजेस द कैश लोकल मेमोरी। फर्स्ट टायर में मोबाइल डिवाइसेस पे जो एपीआई लगी हुई हैं वो आपके कैश होल्डिंग करती हैं, कैश डेटा को रखती हैं। और इसके बाद एट द फर्स्ट टायर द एपीआई यूजेस द कैश डेटा रिकॉर्ड यूजिंग द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो जो भी आपका जो एपीआई है वो यहाँ पे एक होल्ड करेगा डेटा को मोबाइल अपने करस्पॉन्डिंग मोबाइल डिवाइसेस से और रिक्वेस्ट करेगा फर्दर मिडिलवेयर से। From 2 to 3 the server retrieves the transmit the data records and tier 1। उसके बाद फिर आपका डेटा वहां से जाता है और आगे प्रोसीड किया जाएगा। बिजनेस लॉजिक सिंक्रोनाइजेशन लोकल कॉपी ऑफ डिवाइसेस। इसके साथ ही साथ मिडिल टायर का ये काम है कि बिजनेस लॉजिक को होल्ड करना। बिजनेस लॉजिक क्या है कि जो आपका प्रोसेस है, जो आपका लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं जो कि आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रही हैं, उस बिजनेस लॉजिक को आपको होल्ड करना है, रखना है वहाँ पे, और एक सिंक्रोनाइजेशन देना है जो कि सभी लोकल सर्वर पे प्रोवाइड की गई है मेन सर्वर से। तो ये ट्रांसमिटेड कॉपी आपकी अपडेट होता थी। और दीज लोकल कॉपी फंक्शन एज डाइवर्स केसेस डिवाइस केस, और ये लोकल कॉपी जो होती हैं यही आपकी फंक्शनली डिवाइसेस पे वर्क करती हैं। इसके साथ ही साथ एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है होल्डिंग टेक्निक के, इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग इज द नो एक्सेस लेटेंसी, कि यूजर को ये लगता है कि मेरा जो मैंने रिक्वेस्ट की तुरंत वो आ रही है। कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप बार बार एक ही साइट को यूज कर रहे हैं, कुछ इसमें लॉगिन करना है या पासवर्ड डालना है, या आप सेम शेड्यूल को बार बार देखते हैं, अदर अपडेट देखते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे स्टोर रहती है। जैसे मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल बताया था कि आप जो टाइम टेबल देख रहे हैं रेलवे का, तो जो जो आप रेलवे फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे स्टोर है। उसका फ्रिक्वेंट डिटेल, उसका ट्रेन नंबर, उसका डेट है, डे है, हर चीज़ आपकी फ्रिक्वेंटली एक्सेस होती है। ये सब आपके मोबाइल डेटाबेस से ही मिल जाता है, कैश से। इसी तरह से आप वेदर वेदर फोरकास्ट देखते हो तो वेदर पे जो जिस लोकेशन पे आप रेगुलरली चेक करते हैं, इंदिरानगर लखनऊ पे चेक कर रहे हैं या दिल्ली में चेक कर रहे हैं किसी लोकेशन पे, तो उस लोकेशन को तुरंत आपके मोबाइल पे शो कर देता है, भले ही आप कहीं और गए हो। तो इसलिए यह है कि आपका जो फ्रीक्वेंट डेटा है, जो आपका यूजर डेटा है, वो सब आपकी डायरेक्टली वहाँ पे शो जाती है किसी भी टाइम डिले के बिना। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द होर्डिंग इज द एडवांटेज ऑफ होर्डिंग इज दैट देयर इज नो एक्सेस लेटेंसी। नो एक्सेस लेटेंसी है, किसी भी तरह का एक्सेस लेटेंसी नहीं होता है यूजर को। डिले इन द रिट्रीविंग द क्वेरीड रिकॉर्ड फ्रॉम द सर्वर ओवर वायरलेस मोबाइल नेटवर्क। सर्वर से वायरलेस मोबाइल नेटवर्क के थ्रू डेटा लाने में जो समय लगता है वो समय आपके लिए हाइड हो जाता है, और आपको जो भी इसेंशियल टाइम है वो शुरुआत में आपको मोबाइल से मिल जाता है, एक्सेस लेटेंसी कम हो जाती है। The client device API has instantaneous data access to hoarding of cache data। इसके साथ ही साथ मोबाइल पे जो API लगी हुई है वो API तुरंत जिस समय आप रिक्वेस्ट करते हैं नई, वो तुरंत रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जाती है और वहाँ पे सेंड की जाती है।
ये होल्ड डेटा से जाती है, कैश डेटा से जाती, आपकी रिक्वेस्ट पे नहीं जाता है, वो जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होल्ड है वहां से सेंड कर दी जाती है, आपसे केवल न्यू इन्फॉर्मेशन जो लेती है वही जाती है। अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन पे आप सेंड कर रहे हैं तो वही इन्फॉर्मेशन जो कैश वाली है वही सेंड कर दी जाती है, एपीआई सेंड करता है इंस्टेंटली। आफ्टर डिवाइस कैश द डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्वर, द डेटा इज होल्डेड एट द डिवाइस। उसके बाद जैसे ही डेटा सर्वर से मिल जाता है उसको, तो अगेन कैश डिवाइस, कैश जो है उसको होल्ड कर लेती है, रख लेती है अपने पास, और आ, इसको आपको दिखाती है, तुरंत तुरंत चाहिए आपको या ऑफलाइन चाहिए, वो सब उसके हिसाब से आपको मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है होर्डिंग का? डिसएडवांटेज भी बहुत जरूरी है, लिमिटेशन जरूरी है। तो डिसएडवांटेज ऑफ होर्डिंग इज दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ द कैश डेटा विद द डेटाबेस एट द सर्वर नीड्स मेंटेन, कि आपका जो कैश डेटा है वो रेगुलरली अपडेट होना चाहिए सर्वर से, जिससे कि, क्योंकि आपका मोबाइल डेटा, मोबाइल तो डिस्कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, वो जब भी कनेक्ट होगा जब आप रिक्वेस्ट करोगे, इंटरनेट ऑन करोगे, आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो जब आप डिस्कनेक्टेड वे में वर्क कर रहे हैं तो कैश मेमोरी जब भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है उसको अपडेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेटेड रहे। और एक ये रेगुलरली अपडेट होने वाली चीज़ है, ये इसलिए इसका एक तरह से डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक। तो मुझे ये लग रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा होल्डिंग टेक्निक क्या होती है, उसको आपने एक्सप्लेन किया होगा। मेनली इसमें आर्किटेक्चर आता है आपका ये, और वन टायर आर्किटेक्चर क्या है, टू टायर आर्किटेक्चर क्या है, कैसे होर्डिंग इम्प्लीमेंट की जाती है वो आपको मैंने बताया अभी। और उसके बाद होर्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिमिटेशन क्या, एडवांटेज क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड ईयर का, कि हाउ द डेटाबेस होर्डिंग इन अकर इन द मोबाइल डिवाइसेस एंड हाउ इट इज कैशिंग वर्क इन द दीज डिवाइसेस। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। और इसके बाद रिज्वाइन आप हो जाइएगा तो नेक्स्ट आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से होर्डिंग टेक्निक्स आपकी वर्क करती हैं, जिसको हम लोग डेली लाइफ में ही यूज़ करते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे। कैसे वो अपना यूज़फुल डेटा ले रहा है, तो कैसे आपको कंसिस्टेंस वे में वैल्यू दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। और होर्डिंग जो होता है वो पहले जो डिसएडवांटेजेस में उसकी एक्सेस लेटेंसी को कम करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, रेगुलरली अपडेट करना, ये इसका डिसएडवांटेज है होर्डिंग टेक्निक का।